submit. Anush. 1 second. Yes, ma'am. Yeah, I think actually I found the problem why I think last class it was not happening. Okay. What was that? Last class. I had not updated it actually. Today also my school had started on Zoom, so my father actually checked and found out the whole thing was not on the latest update, so we just updated. Now I think it should happen properly. Okay. So, I just updated it. okay. Because every day I take classes now, so I didn't feel means that day or even any single day I didn't feel any problem means like such problems कि हाँ बीच बीच में ऐसा कुछ disturbance हो रहा है. So I thought कि तुम्हारे And yeah, कुछ है ना. today like in chemistry class also the whole portion was like told about the thing. So the isotopes part is also not coming. The whole thing is only separation. Okay. Particulate nature of matter is not. One second. Yeah. Yes, ma'am. So like today's Can class you we were just told. can you text me Yeah. the topics or subtopics? Yeah, I have to check if the PDF is sent because today only we discussed it. So that's the problem. Okay. Then I have to check. But structure means atomic structure and bonding part. Have you checked Bonding it? part is not coming, the ionic bond and the covalent and all. The whole thing is just about valency and atoms and valency and elements. Elements, compounds, mixture, Okay. valency, not the bonds So or the isotopes. वैलेंसी में And मैंने this देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर भी है. Have you checked that ऑक्सीडेशन state? no, that mass and atomic mass is not coming. Just the number and the this configuration will be asked, might be asked. And the second is the states of matter will like not be probably asked but can come. So we'll have to learn that also. And the last thing is separating. That includes fractional and normal distillation, the and all the sedimentation, filtration, condenser, centrifugation, chromatography and all that will come. So only 3 things. Okay. So ये सब तो तुम्हारा हो गया ना? Yeah, we have just done it. So this is the only portion because the test is on 30th of July. Okay. So we might not be able to complete any new chapters. So ma'am said that these are the only things that are coming for now. But this chapter is about to complete, ना? Structure of atom and bonding. इसमें भी तो हमारा सब कुछ हो गया ना? Yeah, we are done extra only because bonding is not yet started. Or nor this isotopes. So we will start it, but ma'am said that for now only these chapters are there. The bonds and that we are not sure if we'll be able to complete. So we just keep this much. Then next CA, CA2, they will include all this then valency and ionic bond, covalent. So C1 तुम्हारे total marks कितने हैं for C1? So yeah, so the whole marking scheme is there is one essay that is the main exam, one exam in one term that is 60%. Okay. Then CA1 and CA2 like normal class test. CA there are two, 10% each, and the other 20% is classwork only. What is CA? What CA2? That's continuous assessment. That's 2 in per term per subject. Okay. So in chemistry there is 2 CA per term. So this will be your terminal exams, terms, Sorry. terminals exams. First term. Yeah, first term there is 2 CA and 1 essay. Second term also the same thing. Okay. So
for CA1 chemistry, the date is given as 30th July. Okay. And for how total marks? Out of 20, but in the total thing, it is only counted as 10%. Okay. So first let's finish this topic ना. ये हमारा तो हो गया ना. Yeah, we have done. So we'll just revise it in the end, last day or so. So तुम्हारे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस है, कर सकते हो सॉल्व. Okay. Find the terms. So, और प्रीवियस जो भी टॉपिक है उस पे कोई डाउट है वो भी तुमने किया हुआ है ना, उसके भी रिवीजन. तो पहले ये थोड़ा सा टॉपिक जो बचा हुआ है कर लेते हैं. देन Yeah. प्रीवियस टॉपिक उसको भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके. Yeah, okay. ठीक है, तो अभी इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे. क्वेश्चन 1 and 2 कर सकते हो. One, okay, one I have already done. ओके. So for the first one, how many electrons? So the 19 protons. Therefore, electrons is also 19 because the number of protons is equal to number of electrons. So 19 electrons, 19 protons, and neutrons is equal to 39 minus 19. That is 20. How many electrons will be there? Okay, हो गया. What is the electronic configuration of X? So it has 19 electrons. So 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 1 second. So 10, 18, 1, 2, 8, 8, 1. 2, 8, 8, 1. Wait, 1 second. 2, 8, 8, 1. So, have you heard this term? Energy. Yeah. So, electron structure जो यहाँ पे given है configuration, ठीक है. So, 2 electrons का मतलब क्या है? And 8, 8 जो तुम fill कर रहे हो electron, first shell में 2 electron, ये तो तुमने कब से structure draw किया है ना, इसका मतलब क्या है? Can you explain? Sorry? Energy क्या होती है? Energy is basically the amount of. ठीक है. नहीं अभी उस पे नहीं जाते हैं. देखो अभी जो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाला है ना, तो तुम्हारे टॉपिक का है, सिर्फ उतना डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाला है ना, तो उसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है. फर्स्ट सेल की एनर्जी लोवेस्ट होती है. देन अभी ऐसा नहीं है कि बीच में भी कहीं पे इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट सेल में कैपेसिटी कितनी है? टू होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और इसकी एनर्जी डिफरेंट होती है फर्स्ट वाले से. ठीक है. इस शेल की एनर्जी कितना होगा? 2, 4, 6. ठीक है. इसकी एनर्जी इससे डिफरेंट होगी. तो जैसे मान लो तुम्हारे क्लासरूम में तुमने ये समझो कि तुम्हारे क्लासरूम से, तो फर्स्ट बेंच पे सिर्फ 2 स्टूडेंट रहेंगे. देन सेकेंड एंड थर्ड बेंच है. ऐसा नहीं कि बीच में कोई नहीं बैठता ना. जो बेंचेस गिवन है, जो प्रोवाइडेड है, उस पे ही बैठते हैं ना. ठीक है. सो जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी लेवल, इस सेल की एनर्जी लेवल. फिर नेक्स्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसकी एनर्जी डिफरेंट है. देन उसके नेक्स्ट जो भी लास्ट के सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. तो थर्ड सेल हो गया. अभी इसके लिए फोर्थ सेल ये हो जाएगा. फोर्थ सेल में जो भी बच गया इलेक्ट्रॉन वो फोर्थ सेल में जाएगा लास्ट में. ठीक है. पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप्स एंड पीरियड बता सकते हो? For which one? On the basis of this structure. Okay, period will be 4. Very good. 4 period. And group is 1 second. Group 1. कितना टाइम क्यों लगाया था ना? Sorry, 11.
इतना टाइम क्यों लगा है ना? आंसर इज करेक्ट, बट टाइम क्यों लगा है इतना? एनी कंफ्यूजन? So I was just like remembering. देखो लास्ट शेल में अगर 1 और 2 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये तो सबसे इजी होगा ना। Yeah. अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है तो ग्रुप 1 में जाएगा, 2 है तो ग्रुप 2 में जाएगा। ठीक है, After that is +10 +10 +10 क्यों करते हैं पता है? because the transition elements in between. करेक्ट, वेरी गुड। डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है तो +10 करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तुमको जो टॉपिक आने हैं उसमें से कुछ डाउट है? ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो तुम बीच में भी पूछ सकते हो। तुमको उसमें यू हैव टू रिवाइज फर्स्ट। कभी तुमको मिला पोर्शन? Portion, I think we had discussed it before vacation only. So यू आर ब्रेकिंग। no, I was saying that the portion as in like सो आइसोटोप्स का एक क्वेश्चन तुमको अभी अटेम्प्ट करना है। okay. सो क्वेश्चन सेकेंड एंड फोर्थ में जो स्ट्रक्चर गिवन है उसमें तुमको सिर्फ ये बताना है। सी एंड डी का आंसर कर सकते हो। राइट हैंड टॉप साइड में देखो। C and D. Okay. बिटवीन विच In टू which एटम्स इज देयर? ओके, फर्स्ट पहले इसका ए बी कर लो। ए एंड name the different elements found in this compound. डिफरेंट CH3. 3 नाम बताओ। क्वेश्चन इज नेम CH3 is methane. no element, don't get confused between element and compound. Okay, carbon and hydrogen. Yes, different elements are carbon, oxygen and hydrogen. And hydrogen. Correct. What is the total number of atoms present in these molecules? Total number: 3 hydrogen, 2 carbon, 4 hydrogen, 2 carbon, 2 oxygen. So 4 plus 2 plus 2, 8. ठीक है, ओके, करेक्ट। अभी सी डी ई जो भी कर सकते हो करो। सी डी ई, between which two atoms is there a double covalent bond? Between which 2 atoms? That is carbon and oxygen. कार्बन एंड ऑक्सीजन, गुड, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में तो हो नहीं सकता है। सो ठीक है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और भी कहीं दिख रहा है? No. ठीक है, दिख रहा ना, दो यहाँ पे, 2 एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन की एंड 2 ऑक्सीजन के डबल को। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन, वेरी गुड। हाउ मेनी सिंगल covalent bonds each carbon atom has? How many 5. single covalent bond does each carbon atom have? Each carbon atom. Yes. So 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3 and 4। ठीक है, और इस वाले कार्बन में 1, 2. Oh no, only 1. The second one is double covalent. नो, देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो ये वाले कार्बन में तो तुम्हारे पास सब सिंगल बॉन्ड है। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना, ऐसा बना सकते हैं। You're only 1. ये हो गया सेकेंड जो बॉन्ड है कार्बन से, तो इसका तो तुमको दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, देन सेकेंड वाले कार्बन पे क्या है? सेकेंड वाले कार्बन से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया इसने, ये वाला। देन So 2. ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना।
ठीक है। सो एक इसने शेयरिंग किया है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। But it's only asking how many single covalent. यस, सो नाउ ट्राई टू So the oxygen one is double covalent, right? The second oxygen. देखो कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिंगल कोवेलेंट। तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, बट फर्स्ट बॉन्ड जो भी बनेगा वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इस वाले केस में एक सिंगल बॉन्ड है, सेकंड कलर चेंज करो, एक सिंगल बॉन्ड है, और जो सेकंड फॉर्म होता है बॉन्ड का दैट विल बी डबल बॉन्ड, ठीक है। सो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल 3 कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें 3 है और इसमें 4 है। Got it? 7 in total. समझ में आया? देखो इसका स्ट्रक्चर अगर कुछ बनाए तो क्या बनेगा, मैं यहाँ पे बताती हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, सी सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, 2 हाइड्रोजन और एक, ठीक है, और एक कार्बन जो है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ है, और एक हाइड्रोजन के एक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है। ये ऑक्सीजन आगे भी बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो सिर्फ इतना ड्रॉ करते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 2,4, तो 4 इसकी वैलेंसी होती है। तो देखो 1 2 3 एंड 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, Yeah. ठीक, एंड इस वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिकी सिर्फ ये था कि ये डबल बॉन्ड दे के तुमने इसको छोड़ दिया, वो छोड़ना नहीं है, इसमें 2 बॉन्ड बनेंगे। पहला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, आगे पढ़ोगे इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। देन सेकंड जो डबल बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा एंड पाई, तो फर्स्ट बॉन्ड जो सिग्मा होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तुम कर सकते हो अपनी नोटबुक में। तो 30th को टेक्स्ट है ना तुम्हारा टेस्ट, Yeah, 30. तो 19 एंड 26 2 दिन में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा ना, कर लो रिवाइज। डन। One second. Yeah. टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास, ठीक है। I'll have to break it. तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं दिख रहा है क्या होता है? तुमने टेक्स्ट बुक में चैप्टर पढ़ी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, Yeah. पढ़ लिया? Not because
because they have not even started it. तो तुमको कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा? देखो तुम अभी वैलेंसी है तो मैंने कहीं देखा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी इसमें से कोई डाउट है? तुमने बताया कि तुमने किया हुआ है, तो 2 का बी कर सकते हो, ट्राई हो जाएगा। डोंट सॉल्व दिस, जस्ट एक्सप्लेन कि इसको कैसे करोगे। Okay. So A sample of gallium contains 60% of atoms of gallium 69 and 40% gallium 71. Calculate the relative atomic mass. क्या करोगे? okay, so 60 upon 100 into 69 and 40 upon 100 into 71. ठीक है, Yeah. फॉर्मूले भी नहीं आ रहा ना, तुमने बताया सिर्फ वैलेंसी आ रही है। हाँ. मुझे ना एक बार ना पूरा प्रॉपर तो मुझे भेज देना कि क्या क्या तुम्हारा टॉपिक्स है, और रिवीजन कब तक कर लोगे? नेक्स्ट क्लास के पहले? Yeah. कोई डाउट है अभी? प्रीवियस चैप्टर से कुछ आ रहा है तुम्हारे याद में? But no. Or any topic which you want to explain again? For now, the topic like Matters भी नहीं आ रहा ना, matters no. तो mainly Mostly there are, but I'll just revise it by chance. आगे. हाँ देखो, जो तुमने किया है उसको रिवाइज करो, बिकॉज तुम अभी ओलंपियाड्स वगैरह में भी तो दोगे ना। हाँ. तो जो भी तुम्हारे टॉपिक्स हो गए उनको रिवाइज तो करना, एंड फोकस मोर ऑन टॉपिक जो कि तुम्हारे टेस्ट में आ रहे हैं, लाइक सेपरेशन वाले से ज्यादा उसको सॉल्व करो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, एटम्स ऑफ एलिमेंट एक्स वाई एंड ये तुमने सॉल्व किया है? पूरा नहीं सॉल्व किया था क्या? Formula. No, this we are not done. Formula of compound and like फॉर्मूला किया? no. Draw diagram to show bonding in each of the following compounds. No. ऑक्सीजन O2, इसके बीच में कौन सा टाइप का बॉन्डिंग होगा? What's covalent? एंड CaF2 में Calcium. That is 2882. No. टाइप ऑफ बॉन्डिंग ना, क्वेश्चन इज बॉन्डिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, किस टाइप का बॉन्डिंग? तुमको डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं बोली, जस्ट इसके जैसे यहाँ पे बताया तुमने कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, so Yeah, but I've like checked the valency of the two. No? Okay. मैंने तुमको कुछ बताया था, हाउ यू कैन चेक कि क्या टाइप का वैलेंसी है, मैंने तुमको कुछ बताया था पीरियोडिक टेबल के एग्जाम्पल से। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है कि उसकी वैलेंसी एंड कॉन्फ़िगरेशन, मेटल नॉन मेटल इतना पहचानते हो? कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल? Metal. एंड फ्लोरीन Non metal. तो मैंने क्या बताया था, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मेटल जनरली Ionic. आयोनिक बॉन्ड बताया ना। सो मेटल
की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल की टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। एंड दो नॉन मेटल्स हैं तो शेयर ही करेंगे। आयोनिक कोवैलेंट, आयोनिक कोवैलेंट। क्लियर ना? देखो अभी कितना सेकंड लगा तुमको आंसर करने में, ठीक है। तो तुमको अगर डायग्राम ड्रॉ करना है देन यू हैव टू नो इसका कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन से भी मतलब नहीं है तुमको, मतलब किससे होती है जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। So metal non-metal is ionic, non-metal is covalent, and metal is metallic. यस, मेटल मेटल मींस मेटल जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है इटसेल्फ इन इस टाइप की बॉन्डिंग होती है मेटालिक में, ठीक है। इसमें से कुछ डाउट है और? No. ठीक है, चलो एक जो मैंने टॉपिक देखा है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और कुछ डाउट है, कुछ याद आ रहा है तो पूछ सकते हो प्रीवियस टॉपिक से जो तुम्हारे टेस्ट में आने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन का ही करेंगे, ठीक है। सो अगर तुमको पूछा जा रहा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बहुत सिमिलर है वैलेंसी से, ठीक है, स्टेट और नंबर। सो ग्रुप वन एलिमेंट जो भी है, ग्रुप वन तुमको पता है पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप वन होता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। तो लूज करेगा तो उसका जो +4 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल फॉर्म कैटायन। तो उसमें चार्ज क्या होता है 1 प्लस का 1। तो प्लस का 1 देखो 1 जनरली हम लोग लिखते हैं वैलेंसी 1, तो सिमिलरली है वैलेंसी के इसमें इसके चार्ज को भी काउंट करते हैं, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड का भी हो सकता है, कैन गेट दी नंबर ऑक्सीडेशन नंबर। और आयनिक बॉन्ड का तो फॉर्मल चार्ज ही होता है, ठीक है। सो ग्रुप वन के लिए हमेशा क्या होगा, सबसे पहले तो तुम ये नोटिस करो कि कोई भी अगर एलिमेंट है, नोट डाउन करो इसको फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट बाय इटसेल्फ उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो नंबर होता है वो 0 होता है, ठीक है। ओके, सो ग्रुप वन के लिए +1 एंड ग्रुप टू के लिए +2, वो भी सिर्फ 2 2 But it's already in a duplet state. No? Second one. ग्रुप 2 Only for helium. नो नॉट फॉर हीलियम, ग्रुप 2 में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ना, पीरियड की बात नहीं हो रही, Other ones, yeah. ग्रुप की बात कर रहे हैं ना। So magnesium 282. यस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ना। तुमने क्या बोला, मैग्नीशियम और बेरिलियम, कैल्शियम, Beryllium, strontium. ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। सो सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,2 2,8,2 तो सबके लास्ट में 2 2 आ रहा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना टू गेन स्टेबिलिटी, ठीक है। सो ग्रुप 2 के लिए ऑलवेज +2, ठीक है। एंड हेलोजेंस, हेलोजेंस की क्या टेंडेंसी होती है, और Halogen is gain one. गेन। सो उस पे क्या होगा, चार्ज के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो -1, -1. ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज फॉर हेलोजन, ये सारा कुछ नोट करना तुमको नेक्स्ट ईयर तक का चलेगा, ठीक है। फॉर हेलोजन यूजुअली -1, ठीक है। Yeah. बट जब ये फ्लोरीन के साथ होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। सो पॉजिटिव 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 विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन
एंड फ्लोरीन, ठीक है। अगर ये सबके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन में हेलोजेंस आ रहा है तो उस टाइम में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कोई भी तुम कंपाउंड फॉर्म करोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सो अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन है, लाइक फ्लोरीन है, या फ्लोरीन के साथ है क्लोरीन, सो इस पे माइनस का चार्ज आएगा हमेशा और इस पे फिर प्लस आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। सो हेलोजेंस का यूजुअली -1 बट पॉजिटिव विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। देन मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा आयंस, जो उसका +1 और -1। नो जो भी उसका चार्ज होगा, हाँ, ठीक है। और मोनोएटॉमिक है, देखो पॉलीएटॉमिक मोनोएटॉमिक जो उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। आयंस ठीक है, जैसे तुमने अगर लिया सोडियम प्लस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +1, जो इसका ये मोनो एटॉमिक आयन हो गया तो इसके ऊपर +1 का चार्ज है तो +1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। देन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तुमको पता है हाइड्रोजन की जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है वो कभी कभी मेटल के जैसा बिहेव करता है, कभी नॉन मेटल के जैसा। वो इलेक्ट्रॉन मोस्टली इट्स माइनस। वो एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, ठीक है। सो इसका बिहेवियर तो ड्यूअल हो गया ना, अलग अलग हो गया। सो फॉर हाइड्रोजन +1 विथ किसके साथ +1 होगा, गेस करो। +1 will be with non-metal. वेरी गुड, विथ नॉन मेटल। एंड -1 विथ मेटल। तो नोट कर लो, फिर मैं आगे थोड़ा और बता। Yeah. फॉर ऑक्सीजन यूजुअली ऑक्सीजन का क्या होगा, देखो 2,6 होता है तो क्या होगा यूजुअली -2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। बट इसके लिए स्पेशल केस है कि अगर पेरोक्साइड में है, ठीक है, सो -1 होता फॉर इन H2O2 पेरोक्साइड, H2O2 यस पेरोक्साइड, -1. यस। अदरवाइज -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है बट पेरोक्साइड के साथ रहना, How? ठीक है। अभी तुमको ज्यादा कुछ इसके स्ट्रक्चर पे नहीं, थोड़ा सा तुमको अभी के लिए सब मगअप कर लो तो बेटर है, क्योंकि ज्यादा इसके स्ट्रक्चर में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। स्लोली विल लर्न, ठीक है। देन फ्लोरीन, हेलोजेंस का तो पढ़ा, फ्लोरीन के लिए क्या है, Fluorine. फ्लोरीन Fluorine or fluorine? Okay. फ्लोरीन फ्लोरीन F फ्लोरीन Fluorine is number 9. That is 2, 7. That is minus. -1. -1 -1 Yeah. ऑलवेज, किस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में
सो जो फ्लोरीन है इसकी हमेशा क्या होगी, -1। ठीक है, हेलोजन से अलग है इसकी प्रॉपर्टी। हेलोजन पे तुम्हारे साथ कुछ कुछ कंडीशन में वेरी कर रहा था ना। हेलोजेंस के लिए अगर ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो बाकी की जो भी हेलोजेंस है जैसे लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सो वो प्लस में चले जाएंगे। ऑक्सीजन के साथ भी रहेंगे तो प्लस, बट फ्लोरीन कोई कंडीशन नहीं है, ऑलवेज -1। ठीक है, sum of oxidation numbers for a न्यूट्रल कंपाउंड। तुमको पता है हमने कब से पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो 0 होगा। ठीक है, एंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन इक्वल टू जो आयन का चार्ज होगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, Yeah. One second. चलो अभी थोड़े से एग्जांपल प्रैक्टिस करो। CaO तुमने फॉर्मूले तो इसके किया ना। ठीक है, my question is what is the oxidation number of calcium in this compound? Calcium. Yes, Calcium is +2. easy. Yeah. F तुमको कैल्शियम का अभी तक जो भी मैंने दिया है तुम्हारे पास, उसमें कैल्शियम का कहीं कुछ पता नहीं था ना। पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हमने नहीं लिए थे ना, है ना। बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि तुमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन यूजुअली -2, सो तुमने किया, क्योंकि ये क्या है, कंपाउंड है। इट इज अ कंपाउंड, ये पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, ये कंपाउंड है। ठीक है, सो दोनों का चार्ज जब तुम इक्वल करोगे तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो तुम निकाली ना इसके -2, सो +2 होगा, देन इक्वल 0 होगा। ऐसे कैलकुलेट Because किया। calcium is 282. सो दोनों का चार्ज किया। तुमको कुछ भी इससे कुछ भी तुमको पता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है तो ऑक्सीजन का जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो वैलेंसी के जैसा ही है ना, कैसे कंबाइन किया है अलग अलग कंपाउंड में एक ही एलिमेंट की, जैसे तुम CO2 ले लो एंड CO ले लो। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तुम कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर, ट्राई Yeah. करो, ट्राई करो। यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन। तुम्हारे पास क्या पता है, सिर्फ ऑक्सीजन का पता है, और ये पेरोक्साइड नहीं है, सो -2 होगा। सो -2 टाइम्स 2 कितना हो गया, 4। 4, सो इसके ऊपर भी क्या आएगा, -4 ये हो गया, तो इसके ऊपर +4 आएगा। +4 आएगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। -2 तो ये हो जाएगा +2। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में तो तुमको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है एंड इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। CuI इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? That I don't. Is it cuprous or cupric? देखो तनुष, अभी तुमको ये सब पता हो जाएगा, फॉर्मूला देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा। ब्रोमीन कितना है? ब्रोमीन कितना है? 3 एटम ऑफ ब्रोमीन है ना, तो Fe3 होगा ना। But bromine का I did not know ना +1 है या -1 है. नहीं देखो मेटल के साथ है ना, देखो अभी तो तुम -3. तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने क्या बताया था कि जो हेलोजेंस है, ठीक है, हेलोजन मैंने बोला था कि यूजुअली -1 होता है, बट कंडीशन क्या था, अगर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन है तब प्लस में होता था ना। मेटल मेटल के लिए याद रखिए कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इसके ऊपर अगर मेटल है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज मेटल के ऊपर है। बट ब्रोमीन अगर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ आ रहा है, उस केस में जो तुम्हारा दूसरा जो है ब्रोमीन रहेगा, जैसे अगर Br आ रहा है फ्लोरीन के साथ, ठीक है, Br, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। कब? जब फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होकर कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। अभी ये तो दोनों ही नॉन मेटल हो गए ना, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। बट एक मेटल है, जब भी मेटल रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसमें, ठीक है, और नॉन मेटल पे माइनस चार्ज। कंफ्यूजन अभी गया तुम्हारा? सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के केस में जो हेलोजन है उसके, क्योंकि ये उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये अपने ये इलेक्ट्रॉन को अपने मींस पुल करना चाहेंगे, ठीक है, क्लियर? तो बताओ मुझे। Yeah. Sorry. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu? So iodine is -1. तो -1, क्योंकि ये कंपाउंड है तो इक्वल +1. जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि दिस इज कंपाउंड। +1. +1 -1 इक्वल 0। तो इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है, ओके। और कुछ डाउट, कोई कंफ्यूजन है? और No, it got clear. NH4Cl, देखो अब इसमें कितने एलिमेंट है? NH4Cl। NH4Cl नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3, ठीक है। So Cl is -1 and nitrogen is 2, 3. So -3. So -3 and -1. So hydrogen will be +4. -3 +4 -1. ओके, ठीक है। In order if you go. तो +4 जो तुम बोल रहे हो, सो ऑक्सीडेशन 1 नंबर, into 4. यस, तो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम कंसीडर पर एटम। सो 4 हाइड्रोजन है, सो क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 4 करोगे, So 1 into 4. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ठीक है। That's for per hydrogen. So 1 into 4. यस, पर हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है ना, तो 4 से डिवाइड किया तो 1। 1 per hydrogen atom. So in total it will be -3 + 4 -1. That is 0.
तुमको क्लोरीन का पता है? -1. -1, ठीक है। Nitrogen is -3. नाइट्रोजन के बारे में कुछ भी Hydrogen आइडिया is नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई so it आइडिया is नहीं। it's 7. नो, बट Common, मैंने जो तुमको डेटा दिया उसमें कहीं नाइट्रोजन के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुमको पता है अभी देखो मैंने जो भी तुमको दिया है ना, उससे तुम किसी भी कंपाउंड का पॉलीएटॉमिक आयन का तुम निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हेलोजेंस का है, और हाइड्रोजन अभी देखो ये सब नॉन मेटल के साथ है। I know nitrogen is a non-metal, so it will not give any electrons. So meaning that hydrogen has to be Yes, giving yes, electrons, yes. because then it will not neutralize if hydrogen, all three of them take electrons. Hmm. So hydrogen will have to give. So 1 into 4. Hmm. 4 minus 1 is 3. Hmm. So I need another 3. So nitrogen will be -3. Therefore. ठीक है। So nitrogen Yeah. -3, hydrogen +1 and Cl -. So I have to give only like per hydrogen the thing, not the whole together. नो, एक एटम का कंसीडर कर, तुमने बताया ना हाइड्रोजन यहाँ पे +4 है ना, अच्छा हाँ तो +4 हो गया ना, हाँ, एक पर एटम पे +1 हुआ ना, बट 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सो टाइम्स 4, 1 into 4 हो जाएगा ना, तो हाँ. एटम के लिए 4 है, तो इस कंपाउंड में, So which one we have to show? पूरे कंपाउंड The में, atom one or the total? पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन पे चार्ज कितना हुआ, +4। सो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के पास भी माइनस का 4 होना चाहिए। सो देखो -3 -1, तो टोटल +4 -4 = 0, ठीक है। बट अगर मैं पूछती हूँ कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या यहाँ पे, सो पर +1 पर एटम होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन इन दी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 के स्टेट में, क्लियर। Okay. Yeah. तो तुम्हारा ये चैप्टर भी अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा एलोट्रॉपी वगैरह है, सो वी विल नॉट डिस्कस अभी। तुम्हारा जो टॉपिक है टेस्ट वाला वही करेंगे। ठीक, सो अभी क्या करना है बोलो। I mean, I also. ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिए लास्ट टॉपिक्स क्वेश्चंस। Which of the substance listed below are metallic elements, non-metallic elements, compound, mixture? कर सकते हो आंसर, ही ये सब आएगा ना तुमको टेस्ट में। Like, are you saying the screen because I can't? Silicon, sea water, calcium. Question number 2, page number 31. I'll have to bring the book because it is. ओके ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ, तुमको यहाँ पे लिस्ट डालना है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। मेटालिक, नॉन मेटालिक, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सिलिकॉन, सी वाटर, कैल्शियम, आर्गन, वाटर, एयर, कार्बन। आंसर स्टार्ट करो। So what do I have to do? Which of the substances listed are metallic,
मेटालिक एलिमेंट्स, Yeah. मेटालिक एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। आयरन, सोडियम क्लोराइड, डायमंड, brass, copper, dilute sulfuric acid. So don't write here. You will not be able to write. Dilute sulfuric acid, sulfur, oil, nitrogen and ammonia. चलो तुम मुझे बताओ इसमें से मेटालिक, Silicon is a metal. okay, then Then calcium is a metal. Then iron is a metal. Diamond is a metal. diamond is a metal. Oh no. ठीक है, any other metal? Any other metal? Copper and one second, I will read it. Sulfuric acid, sulfur, oil, no. कॉपर क्यों नहीं है? Oh, I thought it's okay. हाँ. कॉपर देखो, It's not. तुमने अभी इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए, फॉर्मूले कर लिए, Cu प्लस तुमको पता है ना, No, प्लस, I did not see it properly. ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज मीन्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव तो मेटल ही होगा ना, ठीक है। सो सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन एंड कॉपर। Yeah. ओके, नेक्स्ट लेट मी चेंज द कलर। नॉन मेटालिक, Non-metallic is one is argon, air, carbon monoxide. Then non-metal. Diamond. तुमने डायमंड को मेटल में भी बोला, नॉन मेटल में भी बोला, क्या कंफ्यूजन में? डायमंड होता क्या है? Diamond is a coal ka this when coal is under pressure, so that is non-metal. डायमंड होता क्या है? Diamond is a hard, but that is derived from coal, and coal is a non-metal. कोल कहीं तुमको पीरियोडिक टेबल में दिखता है? पीरियोडिक टेबल में क्या दिखता है? एलिमेंट? Oh, okay, it's a compound then. No, it's not a compound. It is element, but तुमको पीरियोडिक टेबल में कहाँ दिखता है? डायमंड या कोल कहीं दिखता है? जो एलिमेंट दिखता है उसका नाम बताओ। एलोट्रॉप सुना है? जो अभी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं है। एलोट्रॉप जो एलिमेंट है that is carbon. Diamond is an allotrope of carbon. Coal is made up of carbon only. Mostly. Yes, yes. So that's non-metal. ठीक है, नॉन मेटल। डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। Sulfur is a non-metal. Then oil, what is under oil? नाइट्रोजन। Nitrogen. That's no, I was reading that. I was not. Ammonia is no, not ammonia. अमोनिया? No, not ammonia. चलो, तो तुमने अभी जो भी किया, देखो आर्गन क्या है? ये तो नोबल गैसेज है ना, ठीक है। बस यहाँ पे जो कैटेगरी दिया है इसके अकॉर्डिंग तुम इसको पी ब्लॉक में डाल सकते हो। Compound. कार्बन Compound is मोनोऑक्साइड, water. कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों लिया है नॉन मेटल में? Oh wait. No, it's not because there is oxygen also. So that is a compound. कंपाउंड ना। एंड वाटर? Water is a compound, H2O. वेट पहले मुझे तो इसको तुमको क्लियर कर लेना, कंफ्यूजन नहीं रहना। सेकंड Okay, तुमने क्या किया? डायमंड, देन water, नाइट्रोजन, diamond and nitrogen and not ammonia and sulfur. सल्फर, नाइट्रो
सेल्फ देखो जो तुमको पीरियोडिक टेबल में दिखता है ना वही होगा ना एलिमेंट, Yeah. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, तो वो तुमको यहाँ पे दिखना चाहिए, अदरवाइज जो भी है वो कहाँ जाएगा, कंपाउंड और मिक्सचर में जाएगा। मेटल नॉन मेटल जो भी है ना, मेटालिक एलिमेंट्स नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, ठीक है। चलो हाँ. नाउ कंपाउंड्स, That and last one is mixture. Mixture is this. no wait पहले मुझे बताओ कंपाउंड्स नाम बताओ। The वाटर, yellow one is all compound and the blue one is all mixture. वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ब्रास, मिक्सचर है या कंपाउंड है? I know it's an alloy. तो गूगल इट। Alloy is chemically bonded or physically bonded. We can't separate alloys, so it's chemically bonded. And chemically bonded is compound. तो गूगल करना, Pretty sure. ठीक है। But like we can't separate alloys, can we? If we can separate alloys, then yes, then I would say it's a mixture. But we can't separate it. Can like होमोजेनियस मिक्सचर और कंपाउंड, इसके लिए गूगल करना, ठीक है। oh okay. ठीक है। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? कंपाउंड। H2SO4. कंपाउंड। Yeah, H2SO4. H2SO4 के पहले जो है फोकस ऑन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट मींस But सल्फ्यूरिक sulfuric एसिड acid is compound. वाटर ऐड किया है, so then it become mixture ना, mixture of But sulfuric acid is a compound. see if sulfuric acid is there then it is a compound, So it should be both. no Compound dilute plus mixture no dilute दिया है, मतलब ये mixture है ना, of water. ठीक है। देखो dilute 1 second तुमने Okay, किया yeah, ना, got it. एलिमेंट मिक्सचर कंपाउंड सब कुछ किया ना, सो मिक्सचर जो Yeah. होता है उसमें उसका रेशियो जो होता है प्रोपोर्शन वो फिक्स नहीं होता ना, तो तुम उसको Yeah. 80% भी डाइल्यूट कर सकते हो, 60% भी डाइल्यूट कर सकते हो, तो More of the acid is concentrated and less of it is dilute. So water is more. So that's okay, got it. नो बट तुम इसमें वाटर जब ऐड कर रहे हो तो वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो मिक्सचर हो गया ना, Yeah, because it does not get chemically bonded. It is केमिकली only बॉन्डेड physically भी नहीं bonded. है एंड Got it. फिक्स प्रोपोर्शन भी नहीं है, ठीक है। Yeah, got it. देन अमोनिया, तुमने इसको कहाँ डाला है? Ammonia is कंपाउंड, ठीक है। ओके डन, तो इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में एक 2 चैप्टर है ना, एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो मैं बता देती हूँ तुमको क्या करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। सेपरेट टॉपिक क्या है? सेपरेटिंग मिक्सचर, separating methods and techniques. एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, वही ना, ठीक है। सेपरेटिंग टेक्निक्स वो रिवाइज करके आना और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और रिवीजन तो हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो बाय। फुल मार्क्स लाना है, Yeah. प्रैक्टिस करो, टॉपिक को ना अच्छे से रीड करो। Okay.